Assalamu alaikum. Today we are going to start our presentation on the book reading activity, which was assigned to us in our internship week 5. So the topic, the book which was assigned to us was basically Good to Great. It was written by Jim Collins, and now we have this chapters aligned. So we will start with our chapter number 1. So here goes. Ayan. Assalamu alaikum everyone. Guys, I am Ayan Rahman. I am pursuing a degree of electrical engineering from Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. As we all know that the book is given by a Sarfat to read, that is Good to Great by Jim Collins, and I've assigned a chapter number 1. So here are the few points which I am going to discuss today. These points are the findings, or you can say conclusions of the authors and his team research, which are commonly shared by a good to great companies but distinguish them from the comparison companies. ये वो points हैं जो common हैं आपके good to great companies में और उनको मुख्तलिफ बनाते हैं comparison companies से. So number 1 point is the good to great companies have CEOs which came from inside the companies. It means they have been promoted, whereas comparison companies had mostly hired outside CEOs 6 times more often, whereas 10 out of 11 good to great companies have a CEOs which came from the inside of the company. Next point is the good to great companies focus on the change to coming out from their comfort zone, because it is very necessary to bring a change. They motivate their people's workers, they create alignment. So under these right conditions, there is the they remove the problems of motivating their people, creating alignment, or many more. Next point is the good to great companies had no name, no tagline. They didn't launch any event, any program to signify their transform. They just only worked and produced a truly revolutionary leap in their result. और last point is that कि जो गुड टू ग्रेट कंपनीज है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया कि उनको क्या करना चाहिए कि वो बिकम ग्रेट, उन्होंने बल्कि डोंट्स पे भी ध्यान दिया है कि क्या नहीं करना चाहिए टू बिकम ग्रेट. These are all the points which I have summarized in my presentation. Thank you. Now we have Ghulam Nabi. So he will tell us about chapter number 2. Ghulam. I'm sorry. Ghulam, we can't hear you. अस्सलाम वालेकुम guys. मेरी आवाज आ रही? Yes, you're audible. Start कर दूं मैं? Can you start कर दें? So the chapter 2 of the book Good to Great is level 5 leadership. Basically, this chapter begin with a quote which is the following key points which are described in the level 5 leaderships are firstly, the level 1 is highly capable individual, and the second is contributing team members, and level 3 is competent manager, and level 5 is effective leader, and level 4 is effective leader, and level 5 is great leader. Basically, this chapter is based on level 5 leadership, which described that level 5, basically the concept of level 5 leadership was introduced by Jim Collins. He searched for several years and then he discovered level which is level 5, which is called as great leader. So the following characteristics which define the level 5 leaders are: develop humility, ask for help, take responsibilities, and develop discipline, find right people, and the last one is lead with passion.
The whole chapter is basically based on these characteristics and these levels. So this is all done from my side. Thanks. Great. Now we have chapter 3, which is described by Awais Ali. Awais. अस्सलामुअलैकुम। Walaikum तो Assalam. हमारे पास चैप्टर 3 है, फर्स्ट हू देन व्हाट। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, फर्स्ट हू देन व्हाट का मतलब ये है कि आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आप अगर कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके साथ कौन है या आप लीडरशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ कौन है, आपके टीम मेंबर्स कौन है, आपकी सराउंडिंग्स में कौन कौन से लोग हैं। उसके बाद जब आप ये देखें उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाएं, ठीक है। तो एक अच्छे लीडर्स की यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ पर फर्स्ट फिगर में जो है वो कमिटेड पीपल आपके साथ होने चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जो कि मोटिवेशन रखते हों, जो कि सेल्फ कमिटेड हों और एक तरह कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। तो और उसके बाद सेकंड फिगर में देखें, मैं लीडर्स की 4 क्वालिटीज बताना चाह रहा हूँ जो कि इस बुक में लिखी हुई है कि राइट पीपल आपके साथ हों, ठीक है। और उसके बाद रॉन्ग पीपल जो है वो आप मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अगर आप जहाँ पर भी लीडरशिप कर रहे हैं, रॉन्ग पीपल को अगर आप साइड पे कर दें तो आप उसको ज़्यादा स्मूथली चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो लीडर, अच्छे लीडर की ये होती है पहचान के हु बिफोर व्हाट, और जो है मतलब कि हमें करना कौन है हमारे साथ और क्या करने से पहले, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली। और थर्ड जो है, थर्ड पिक्चर में जो है बेसिकली ये हमारा जीनियस एक मॉडल है, जीनियस विद 1000 हेल्पर्स। इसमें आप देख सकते हैं कि एक लीडर है वो अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा है। तो ये मॉडल एक बहुत कामयाब मॉडल है क्योंकि एक जीनियस लीडर होना ज़रूरी है किसी को ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, ठीक है। तो ये जीनियस जो है वो, और उसके साथ हेल्पर रहने, जैसे अगर आप राइट पीपल आपकी कंपनी में होंगे तो बेसिकली आपके जो हेल्पर होंगे वो भी मोटिवेशन वाले होंगे, वो भी एक अच्छा आइडिया देंगे आपको। तो वो जब आपको अच्छा आइडिया देंगे और जीनियस लीडर जब उसको एक मतलब एग्जीक्यूट करेगा तो जाहिर सी बात है ये कंपनी की ग्रोथ होगी, जो कि फिगर नंबर 4 में आपको दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, यहाँ पर इसमें ग्राफ आपको ये शो कर रहा है, एक कंपनी का एम्प्लॉय था वेल्स फार्गो, ठीक है जी। इसका आपको ग्राफ दिख रहा है वर्सेस बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी वीक लीडर्स, यानी कि वीक जनरल। उन्होंने बेसिकली ये अपनाया था कि लीडर जो है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, वरना टीम जो है वो एक मिक्स होकर काम नहीं करती। क्योंकि अगर लीडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा तो फिर वो टीम के ऊपर दबाव डालेगा कि भाई मुझे सब आता है तुम्हें कुछ नहीं आता। तो उन्होंने वीक जनरल्स की एक पॉलिसी अपनाई थी जो कि उन्हें इतनी ग्रोथ नहीं दे सकी। वेल्स फार्गो ने जो कि यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि हमें जो है राइट पीपल अपने साथ रखने हैं। एक अच्छी टीम होगी तो हमें उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप उसका ग्रोथ का ग्राफ देख सकते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका से ज़्यादा था। अच्छा, उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका ने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई, लेकिन वो उस वक्त तक बहुत नुकसान कर चुके थे अपना, ठीक है। अच्छा, इसके लास्ट में एक कोट है कि एक आर्मी जो है, एन आर्मी ऑफ अ शीप इज लेड बाय अ लायन इज बेटर देन आर्मी ऑफ लायन लेड बाय अ शीप। तो इसलिए बेहतर ये है कि एक अच्छा लीडर हो जो कि टीम को अच्छे आइडियाज दे सके और लीड कर सके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट मेंबर विल प्रेजेंट यू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। Okay, chapter 4 will be presented by Mohammed Hassan. Mohammed Hassan, ready? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे चैप्टर 4 असाइन किया गया था, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स। तो सबसे पहले तो एक कोट राइटर ने लिखी हुई है जो कि इस चैप्टर को थोरली एक्सप्लेन करती है। देयर इज नो वर्स्ट मिस्टेक इन पब्लिक लीडरशिप देन टू होल्ड आउट फॉल्स होप्स सून टू बी स्टेप अवे। तो ये जो है ना, ये वाली कोट इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करती है और इसका थीम बताती है। बेसिकली इसका थीम ये है कि जो भी कंपनियां डिस्ट्रॉय होती हैं ना, मोस्टली उनकी वजह ये होती है कि वो ना रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, चेंजिंग मार्केटिंग डिमांड्स या इस तरह की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती और फॉल्स होप्स डेवलप कर लेती हैं कि इस तरह ही ऐसे चलता रहेगा और खुद ही हालात ठीक हो जाएंगे।
तो ये उनकी बर्बादी की ना सबसे बड़ी वजह होती है। तो आगे ना नेक्स्ट स्लाइड पे राइटर ने मेजर रीजन फॉर बिजनेस डिस्ट्रक्शन इधर ना कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हुए हैं कि यानी समराइज किए हुए हैं। वो पॉइंट्स ये हैं कि दीज कंपनीज डोंट एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ चेंजिंग मार्केटिंग डिमांड विद पासिंग टाइम। मसलन के जैसे जैसे टाइम गुजरता है और बिजनेस की ना मार्केटिंग डिमांड्स चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये कंपनियां ना जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं वो इसको कंसिडर नहीं कर रही होती, यानी कि मान नहीं रही होती। और उसका सेकंड पॉइंट यही था कि में एक फॉल्स होप्स, यानी कि वो इसी पॉइंट पे अड़े रहते हैं कि खुद ही चीजें सेट हो जाएंगी, हमें ना कुछ करना पड़े, ठीक है जिस तरह चल रहा है चलने दो। वो थोड़ी देर तो चल जाता है लेकिन इन दी एंड आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बड़ा अच्छा ना उठाया कि दे डोंट एक्सपेरिमेंट न्यू बिजनेस आइडियाज। वो भी पीछे से काफी रिलेट कर रहे हैं कि ना बिजनेस है उसको चलाना है तो न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए। ये नहीं कि एक चीज सेट कर ली और उसी पे चलते रहो सारी जिंदगी, नो। तो ये जो कंपनियां तबाह हो रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो न्यू बिजनेस आइडियाज नहीं एक्सप्लेन यानी देख रही थी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट भी पीछे से रिलेट कर रहा था, दे डोंट एक्सेप्ट चेंजेस एंड स्टिक टू द पास्ट। तो के बाद फिर उन्होंने ना कंपेयर किया इन जो तबाह होने वाली कंपनियां थी ना गुड टू ग्रेट कंपनी से, कि वो इस सिचुएशन में क्या करती। तो फिर राइटर ने यही समराइज किया कि वो ना ये रियलिटी देखती हैं कि अब कस्टमर को क्या चाहिए, वो इस चीज को मानती हैं कि अब चीजें चेंज हो रही हैं और हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसका सेकंड पॉइंट भी इस चीज को सपोर्ट करता था कि दे मेक देमसेल्फ रेडी फॉर चेंज एंड दे कंटिन्यूअसली रिफाइन द पाथ टू ग्रेटनेस। एंड इन द एंड वो मैकेनिज्म बनाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं कि अब यूजर को क्या चाहिए, इस पे चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर इन दी एंड उन्होंने एग्जांपल दी हुई थी दो कंपनियों की, क्रोगर एंड A&P इंडस्ट्रीज। दोनों 1960s में बहुत वेल्थी थी, ठीक है, लेकिन 1973 तक भी ये ऑलमोस्ट सेम इनकम वगैरह रख रही थी। लेकिन 1990 में जाके जो एक कंपनी थी उनमें से वो तबाह हो गई और दूसरी कंपनी का वेल्थ डबल हो गई। उसकी उसने वजह यही बयान की कि वो दोनों थी सेल्स की कंपनियां, ठीक है। तो जो तबाह हुई थी वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही थी चीजें, ठीक है, लेकिन दूसरी ने एक्सपेरिमेंट किया और वो इस नतीजे पे पहुंची कि यूजर्स को पूरे यानी कि एक लैदा लैदा चीजें नहीं चाहिए, उनको एक सुपर स्टोर चीज चाहिए जहाँ पे हर कुछ मिल जाए। तो उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब हुआ और वो चले गए, उन्होंने इस चीज को चेंज किया। लेकिन जो दूसरे थे वो कह रहे थे कि हमारे जिन्होंने सेट किया ये इंडस्ट्री उन्होंने भी इसी तरह रखी हुई थी, ठीक है, तो यही मॉडल चलने दो। और वो इन दी एंड तबाह हो गए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया और उन्होंने यही होप रखी कि हमारे बड़ों ने भी ऐसे ही चलाई थी, हम भी ऐसे ही चला जाएंगे, तो वो नहीं चली इंडस्ट्री। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Thank you. Now we have chapter number 5 with Humayun Ahmed Khan. Humayun. Yeah, Assalamu alaikum. This is Humayun Ahmed Khan and I'm a student from NAD University. In this chapter, the hedgehog concept, we were assigned to learn what are the basic of inside of it. So the basic things can be summarized in a content form and then a summary. So the first thing was related to that, as explained by Mr. Berlin, the hedgehog and the fox. The people who are running the industries are divided into two types, the foxes and the hedgehogs. The foxes, those who pursue many ends at the same time and see the world in all its complexities, while the hedgehogs, they simplify a complex world into a single organizing idea, a basic principle that concept and unifies them at one point. Similarly, there is a drastic change in both the approaches. Let's move towards. There are different scenarios where we can run our company, which were technically explained in the book. That first, you have to learn who you are, what you are working, confront the brutal facts,
the thing you are doing for your company and the thing which are necessary for the company, and then apply the hedgehog concept. And then this after this build up, you will find the essential breakthrough in the company. And as there were different explanations of the company, first one was between the Walgreens and the Merck. That what was the main difference? Like Merck was usually increasing their stocks profit, and Walgreens was lacking behind, but they moved ahead. And what was the main idea? To provide convenient stores in all around the cities. That was just one basic idea. They profound their hedgehog concept and moved ahead. Similarly, there what are the three circles which makes the Walgreens success? There are two different types of strategies: a good strategy and a bad strategy. All good to great companies created a simple concept to use as a frame of reference, while the other companies got caught up in all this different type of strategy for their respective growths. The three circles determining the hedgehog concept, which is a simple crystalline concept that flows from deep understanding about the intersection of the following circles, right? And similarly, what were the core competence of the hedgehog concept and the companies? The main idea was still, how can you be the best in the world? While the companies with the fox mentality were searching about it, but the companies with the hedgehog concept were thinking on the basic idea. Okay, what is your denominator? The first thing, a company, if you want to be a great in the world, you need to attain profound insight into your economics, understand what are your economic barriers and the market trends, and then you can unify and grow in the market. So that's was all about in the starting. And the after that, there are more towards in the book that related in the chapter 5 was that what is your passion? कि आपका passion basically क्या है? Like a company that is working that is creating tobacco, their passion is not to kill humanity, but their focus is to attract the people who wants to, make them more vulnerable and feeling like dizziness and something like. So that was the main idea, that's how they target people, and that's how they become good in the market. So the idea was more continued in the next chapter, that is related to how are we going to discover and move in the market. And all good to great companies discovered that if you cannot be the best in the world at your core business, then core business cannot form the basis of your hedgehog concept. Thank you. That's all from my side. Thank you, Mayu. Now we have chapter number 6, A Culture of Discipline by Sarfaraz Ali and Fayyaz Beg. So Sarfaraz, start. Assalamu alaikum. I am Sarfraz Ali, studying in industrial electronics at IIE Karachi. I am going to explain that how culture of discipline helps organization to become good to great. In this chapter, first of all, a little story of George Rathman, co-founder of biotechnology company, is shared. He starts a company and he achieved a very great success in little time. So what he says about entrepreneurial success: entrepreneurial success is fueled by creativity, imagination, bold moves, and visionary zeal. Next slide. Now we will see the good to great metrics. In good to great metrics, it is explained that great organization have a great discipline and great culture of discipline and ethics of entrepreneurship. And on the other side, a bureaucratic organization have low culture of discipline and low ethic of entrepreneurship. In bureaucratic organization, the purpose of bureaucratic organization is to compensate for incompetence and lack of discipline. So what is the solution of bureaucratic organization? We can solve this problem by putting the right people in the first phase.
Before establishing a company, biotechnology company, George Ruthven worked in Abbott or laboratories. What he learned from this great organization, because Abbott is one of the most prestigious company and very successful. He learned many things. He learned discipline, and the other thing which he learned uh, was that we should set our objectives for the year, and when we set our objectives, then we can change the plan, but we cannot change our objectives. Our goal will remain same, but we can change in planning plans to achieve that goal. And what the other thing which he learned from the Abbott was that make culture of discipline and fill that culture of discipline with disciplined people who are willing to go to extra lengths to full their responsibilities. So before first he worked in Abbott Laboratories, then he established his own organization. So he became successful. Good to great companies hire self-disciplined people who did not need to be managed, and they manage the system, not the people. So this was from my side. Good to great companies hire disciplined people. Now over to Fiaz, who will explain further culture of discipline. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Faiz Beg and I'm doing electrical engineering from NAD University. And my task was to go through second part of chapter 6, culture of discipline of book Good to Great. In my portion of this chapter, they have briefly explained the difference between the approaches adopted by companies for discipline. Basically, these approaches depend upon the type of leaders. Good to great companies have level 5 leader who build an enduring culture of discipline by his own acts without using his sheer force, while direct comparison companies have level 4 leader who impose discipline tyrannically by using his sheer force. Although the objective of both the leaders is to create discipline, but their approaches are totally different, which will surely affect the reliability of discipline. अच्छा, अब इन दोनों में से अगर बात की जाए कि कौन सा बेहतर है, तो जो लेवल 5 का लीडर जो डिसिप्लिन इंपोज कर रहा है वो ज्यादा बेहतर है लेवल 4 के लीडर से, क्योंकि जो लेवल 4 का लीडर है वो अपनी फोर्स का यूज कर रहा है डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, वो जो है अपने एम्प्लॉयज को ओवरबर्डन कर रहा है, उन पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो उससे होता ये है कि जब वो लीडर रिटायर हो जाएगा तो वो फिर डिसिप्लिन टेम्पररी होगा, वो डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो लीडर भी रिटायर होगा तो यकीनन वो फोर्स भी नहीं रहेगी, तो सब जो कंपनी होगी वो फिर लॉस में जाने लगेगी। और जो लेवल 5 का लीडर होता है वो यकीनन अपने एक्ट्स के जरिए जो है लोग उसको खुद फॉलो करते हैं, वो किसी को फोर्स नहीं करता कि आप मुझे फॉलो करो या आप जो है काम करो, बहुत ज्यादा काम करो, वो सबके दरमियान इक्वालिटी रखता है। तो इस वजह से जो डिसिप्लिन लेवल 5 का लीडर क्रिएट करता है वो फिर रिलायबल होता है और उसकी रिटायरमेंट के बाद भी वो फिर डिसिप्लिन जो है कंपनी में रहता है, फिर कंपनी को लॉस नहीं होता आगे। अच्छा, इसके बाद in order to create a reliable discipline, most of the level 5 leaders use hedgehog concept. This concept conveys the idea of managing its company without class distinction, worker operation and sheer force. यही मतलब कि वो इक्वालिटी रखता है, वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज और जो हायर मैनेजर्स होते हैं वो सबको बराबर लेके चलता है। वो ऐसा नहीं करता कि लोअर लेवल एम्प्लॉयज के साथ वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन कर रहा है, उनको बहुत ज्यादा काम दे रहा है, और जो हायर लेवल मैनेजर्स हैं उनको इतना काम नहीं दिया जा रहा, तो सबके दरमियान इक्वालिटी रखता है। तो इस वजह से जो है जो लेवल गुड टू ग्रेट कंपनीज होती है ना, उनमें डिसिप्लिन फिर कायम रहता है उसके लीडर के रिटायरमेंट के बाद भी। इसके बाद then further author tells that stop doing lists are more important than to do list. Discipline can only be maintained if we try to control ourselves first. मतलब यही कि कोई भी बुरा काम करने से पहले, कोई भी अच्छा काम करने से पहले हमें अपने आप को बुरे काम करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर हम अपने आप को बुरे काम से नहीं रोकेंगे तो हम यकीनन फिर अच्छे काम करते वक्त भी अब कोई ना कोई बुरा काम लाजमी करेंगे। तो इसका कंक्लूजन यही है कि ऑथर यही कह रहा है कि सबसे पहले हमें स्टॉप डूइंग लिस्ट पे जो है कंसंट्रेट करना चाहिए अगर हमें डिसिप्लिन कायम रखना है किसी भी कंपनी। तो अगर हम स्टॉप डूइंग लिस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो उससे भी डिसिप्लिन आगे भी कायम रहेगा। That's all from my side. Thank you, Fayaz. Now we have chapter 7 with Babu Jaipal and Rafi Rahman. So we'll start with Babu.
Assalamu alaikum. My name is Babu Jayapal. I am from Electrical Engineering Department, NED UAT Karachi. So I will be presenting my views on this topic, technology accelerator. I will start my topic with the quote by Alan Moore, which is quotes that technology is always a two-edged sword. It will bring in many benefits, but also many disasters as well. सो चैप्टर के इनिशियल में हमारे पास दो कंपनीज का आपस में कंपैरिजन दिया गया है कि वो टेक्नोलॉजी की उन्होंने किस तरह हाइप क्रिएट की और स्टॉक मार्केट में एंटर किया। पहली है ड्रग स्टोर .com और दूसरी है वॉलग्रीन्स। जैसे ड्रग स्टोर है तो उनका कोई एक प्रोफाइल नहीं था इनिशियली, दोनों ने टेक्नोलॉजी की हाइप क्रिएट की और पब्लिक से पैसे कमा लिए, मतलब एक किस्म के स्टॉक जो है ना रातों रात बढ़ गए उनके। और दूसरी कंपनी है वॉलग्रीन्स ने एक स्ट्रेटजी फॉलो की, क्रॉल वॉक एंड रन की। मतलब पहले उन्होंने एक पब्लिक में अपनी वैल्यू बनाई कि एक कंपनी के तौर पे, उसके बाद एक मतलब इंटरनेट पे टेक्नोलॉजी लाए अपनी कंपनी में, तो एक वो वॉक की उसकी स्ट्रेटजी हो गई, उसके बाद रन। तो ये स्ट्रेटजी को लाते हुए उन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया वॉलग्रीन ने ये, और ये काफी इफेक्टिव साबित हुई। ये मतलब इस कंपनी में नहीं और भी बाकी सारी कंपनीज में। जहाँ तक देखा जाए इस टॉपिक का नाम ही है टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर, तो मतलब टेक्नोलॉजी को हम एज ए एक्सेलरेटर यूज कर सकते हैं मोमेंटम बढ़ाने के लिए। टेक्नोलॉजी किसी भी कंपनी को क्रिएट करने में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो अपने कोर बिलीफ पे, उसके विल पावर पे, उसकी लीडरशिप पे डिपेंड करती है उसकी ग्रोथ। तो और देखना है हमें कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे जो कंपनी को कितना आगे लेके जाएगी, उसको कि हमारी जो है जो कॉन्सेप्ट जो सारों ने डिस्कस किया है उसको मैच कर रही है कि नहीं कर रही। और ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि अगर टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी है कोई भी इंटरनेट पे नहीं है तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं है। ये मेन वजह नहीं हो सकती, उसकी काफी सारी वजूहत हो सकती हैं। ये कहना कि टेक्नोलॉजिकल चेंज किसी भी कंपनी के डिक्लाइन में या किसी भी उसको ग्रेड बनने में एक बड़ा रीजन है, तो ये एक किस्म का गलत कहा जा सकता है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी आपको जस्ट मोमेंटम देगी, एक्सेलरेट करेगी आपकी कंपनी को ग्रोथ में। आपको उसको क्रिएट बनाने में, एक अच्छा करने में वो इतना फायदेमंद साबित नहीं होगी। सो ओवर टू यू राफी। Assalamu alaikum everyone. I am Rafi Rahman from Zebis. So, as my partner told everything about chapter 7 as a technology accelerator, तो इसने सारा मतलब चैप्टर क्या डिफरेंस बता दिया आप सबको। तो मैं आऊँगा चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट पे कि टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर होता क्या है। हम एक्सेलरेटर की मतलब पहले तो हमें समझना पड़ेगा एक्सेलरेटर क्या होता है। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को बढ़ा दे, तेज कर दे, तो उसे हम एक्सेलरेटर कह सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर हम कह सकते हैं जो हमारी गुड टू ग्रेट कंपनीज होती हैं वो हमारे लिए टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर होती हैं। लाइक आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको स्टार्टअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट लेके देती हैं और उसके अलावा आप उनसे अपने आइडियाज शेयर करते हो। वो आपको इन्वेस्टमेंट और मतलब इक्विटी के बदले, आपको कंपनी में इक्विटी के बदले आप उनको अपना आइडिया वगैरह देते हो, आपको इन्वेस्टमेंट देती है, आप सारा काम करते हो। तो गुड टू ग्रेट कंपनीज का काम ही होता है मतलब वो आपको मतलब एंटरप्रेन्योर बनाती है, वो आपको पीछे नहीं करती। दूसरी कंपनीज ये होती हैं कि हमारे मतलब ये कंपटीशन में आ जाएगा, इसकी कंपनी स्टार्ट हो गई इस तरह से। तो गुड टू ग्रेट कंपनीज जो होती हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचती हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचती हैं, वो चाहती हैं कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। तो मेन कॉन्सेप्ट जो था इस चैप्टर का वो मैंने सारा समराइज कर दिया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर कंपनीज होती हैं वो टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं करती, वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you, Rafi. Thank you, Babu. Now we have chapter number 8. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Zain and I'm doing electrical engineering from Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences, also known as BIAS. My topic was the flywheel effect and the doom loop. First of all, let me tell you what the flywheel effect is. अच्छा, अगर इसे simple terms में define किया जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि जब भी let us assume a flywheel, अगर हम लोग उसे rotate करना जब शुरू करेंगे
तो शुरू में स्टार्ट में हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन जब हम 40-50 रेवोल्यूशन मतलब एक कुछ टाइम गुजरने के बाद जब हम लोग वो उसको मतलब मुसलसल काम करते रहेंगे, तो उसके बाद जब मोमेंटम बिल्डअप होगा ना फ्लाईव्हील का, तो उसकी वजह से उसका मोमेंटम ही उसकी रोटेशन को सपोर्ट करेगा और हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इसी को अगर हम रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करें तो शुरू वाले फर्स्ट स्टेप्स जो होते हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन जब हम कुछ स्टेप्स ले लेते हैं तो उसके बाद हमारे लिए भी आसानी बन जाती है, क्योंकि हमारा काम अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर रहे हैं तो हमारा काम ना सिर्फ हमें सपोर्ट करते हैं बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उन्हें भी मोटिवेट करते हैं। मतलब हमें उन्हें मोटिवेट करने के लिए अलग से एनर्जी नहीं देनी पड़ती। जो अगर हम अपने काम को अच्छे प्रॉपरली एनर्जी दे रहे हैं तो लोग उससे इंस्पायर होकर खुद ही हमारे काम में हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को एलन वर्डजल ने 1973 में फॉलो किया था, जब वो कंपनी थी उसकी, तो वो तकरीबन बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन उसने कंपनी का जैसे ही उसे सीईओ बनाया गया तो उसने उस कंपनी के अंदर कुछ प्रोमिनेंट चेंजेस की। उसके बाद उसने उसके अंदर जो मतलब इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती थी उन्हें उसने पॉइंट आउट किया और उन चेंजेस को फॉलो किया, और इसका ये रिजल्ट निकला है कि 1984 में उसे बहुत सी फॉर्ब्स जैसे बाकी दीगर जो न्यूज़पेपर्स थे उसके अंदर उसे डिस्कस किया जा रहा था। और बाय 1999 इस कंपनी का जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो मतलब स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो इसके प्रॉफिट्स थे उसमें ये इंटेल और इस तरह की जो बाकी कंपनीज थी उनसे 20% आगे जा चुकी थी प्रॉफिट्स के अंदर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है डूम लूप। इसके अंदर आप ये करते हैं कि आप कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करते, बल्कि जो आप एक काम को शुरू करते हैं उसके अंदर जैसी कुछ इंप्रूवमेंट्स आने लगती हैं आप उसी वक्त उसकी कंपनी का रुख मोड़ देते हैं और उसे किसी दूसरी डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देते हैं। इस काम में भी देखा गया कि वार्नर लैम्बर्ट एक कंपनी थी और उसने किया ये कि 1979 में जब उसने काम शुरू किया तो उनका फोकस था कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन 1980 में जब कुछ बेनिफिट्स आने लगे तो उन दिनों में 1980s के अंदर क्लिनिक्स और हेल्थ इंडस्ट्रीज जो थी, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो बना रही थी, वो काफी प्रॉफिट में जा रही थी, तो इन्होंने अपना रुख कर लिया उस साइड पे 1980s में। जब इन्होंने ये काम शुरू किया उसके बाद एक साल के बाद जब इन्हें कुछ ज्यादा प्रॉफिट्स नजर नहीं आए तो 1981 में ये लोग दोबारा जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ चले गए। इसी तरह इन्होंने इसी पैटर्न को फॉलो किया 1986 में, या मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 6 ईयर ये लोग दोबारा से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ आ गए, फिर क्लिनिकल की तरफ चले गए। तो बाय 1999 ये कंपनी तकरीबन बैंकरप्ट हो चुकी थी और उसकी वजह यही थी कि इनके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। जैसे कि हसन भाई भी कह रहे थे कि एक कंपनी जो न्यू चीजों को नए आइडियाज को एक्सप्लोर नहीं करती तो वो कंपनी पीछे रह जाती है। लेकिन ये डूम लूप इफेक्ट हमें ये बता रहा है कि जो भी चेंज हम लोगों ने जो भी न्यू आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको हम पहले एक छोटे स्टैंडर्ड पे कर लें ताकि हमारी ओवरऑल कंपनी के अंदर चेंजेस ना आए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो आइडिया हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा साबित ना हो और उसकी वजह से हमारी कंपनी का जो रिदम है वो सारा का सारा खराब हो जाए, जिसकी वजह से बहुत बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं कंपनी के ऊपर। जिस तरह की ये वार्नर लैम्बर्ट कंपनी ने प्रूव भी किया 1979 में, ये एक अच्छी कंपनी थी जो काफी ज्यादा स्टॉक्स मतलब प्रॉफिट्स निकाल रही थी, लेकिन बाय 1999 ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी अपने इसी फ्लो की वजह से। कभी ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है और कभी ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ आ रही है। तो दैट्स ऑल, आई एम गोइंग टू नाउ नेक्स्ट टू समराइज। Thank you. Now it's my turn. So my chapter that which was assigned was from good to great to build to last. Now the core theme of this chapter was कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो भी हमारी कंपनी होगी वो हमें स्क्रैच से स्टार्ट करनी चाहिए बनाने। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी कितनी ज्यादा सस्टेनेबल रहेगी, कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। रिस्क होता है हर कंपनी में, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुडंट स्टार्ट एनी कंपनी फ्रॉम द बिगनिंग। Like we should have the core planning and all that stuff so that we can move forward with our proceeding. And then we have some examples of the companies which were examined, like Procter and Gamble, American Express, Johnson and Johnson, and GE. Other companies like Walt Disney and HP, they have some specific stories about themselves. HP was based on Hewlett and Packard. The Hewlett Packard basically are two friends who started a company in 1923
and they were focusing on promoting their electrical engineering concept to the world, where they were explaining where they were sending products of their own company to other customers, and they were expecting that they will reach to a height, but with constancy and their friendship, they had established themselves throughout the years. Then comes our famous Walt Disney, where he has shown and proven himself as a great personality, where he took an uncertain path and worked on cartoons and animation, where he motivated small kids to have a lesson of their lives and help them throughout. As well as that, this chapter also highlights that no matter what, we should always move towards betterment and also try to accomplish those things which are unimaginably impossible for themselves. But it became clear that there would be sustainably less risk in starting from scratch, setting out to discover what we would, whether it matched previous work or not. So in the end, I would like to conclude that we had a great time learning from the good to great, and we hope that we can, inshallah, prove ourselves to be great entrepreneurs someday and move forward with success. Thank you so much.